Hello everyone. Good evening. Today is the second lecture of the series, and we are discussing real numbers. Yesterday we discussed real numbers MCQs from priority one, right? So today we're going to discuss the 2 mark questions from priority one of the questionnaires. All right, let's get to the questions as fast as possible. And if you have any doubt in the previous lectures, just ping me on and drop a comment in the comment section, so that I can discuss if you have any doubt in this lecture or the in the upcoming lectures. All right, let's get to the first question of today's session. That question is, using prime factorization, we need to find the HCF and LCM of 96 and 120. All right, so prime factorization, HCF and LCM of 96 and 120. So 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 2 into, सो प्राइम फैक्टराइजेशन 96 2 से डिवाइड करेंगे आप, यू विल गेट 48 राइट. फिर 48 को 2 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 24. फिर 24 को 2 से डिवाइड करेंगे, यू विल गेट 12, 2, 2, 3. ओके, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है, देन व्हाट यू कैन डू इज द सेम प्रोसेस दैट वी हैव डन ऑलरेडी. 248, 224, 212, 2 2 sorry 6, 2 3 3 1. So 5 times 2 and 1 time 3, right? So you can write it as 2 raised to power 5 into 3. Now prime factorization of 120, 2 into 60 आएगा, 2 into 30 आएगा, 2 into then 15 आएगा, then 3 into 5 आएगा, and then 5. 2 2 2 8 8 into 3 is, ऐसे भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो आप कि 2 into 2 into 2 is 8, 8 into 3 is 24, 24 into 5 is 120. So in short, in exponential form, we can write it as 2 raised to power 3 into 3 raised to power 1 into 5 raised to power 1. और 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन वॉज 2 रेस्ट टू पावर 5 इंटू 3 रेस्ट टू पावर 1. ठीक है, और नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट इज द HCF एंड LCM, राइट? तो HCF के लिए ध्यान से देखेंगे आप, HCF ऑफ 96 एंड 120. HCF में जो मिनिमम पावर है किसी भी प्राइम फैक्टर की, प्राइम नंबर की इनके फैक्टर्स में, वो कंसिडर करेंगे आप. तो 2 की पावर यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, तो मिनिमम पावर कौन है? 3. तो आप 3 कंसिडर कर लेंगे. 3 की दोनों ही जगह पावर 1 1 है, तो 3 की पावर 1. 5 की पावर यहाँ 1 है और यहाँ कितनी है? 5 रेस्ट टू पावर 0 है. सो मिनिमम पावर इज 5 रेस्ट टू पावर 0, विच इज़ 1 ओनली, राइट? तो अगर कोई नंबर एक्स्ट्रा है किसी और फैक्टर में, तो वो कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है. So our HCF would be 2 raised to power 3, that is 8, 8 into 3 is 24. So 24 is the HCF of 96 and 120. Now coming to the LCM, जैसे HCF में आपने लोवेस्ट पावर लिया था, वैसे आप LCM में हाईएस्ट पावर कंसिडर करेंगे. सो 2 रेस्ट टू पावर 5 और 2 रेस्ट टू पावर 3 में ज़्यादा पावर किसकी है? 2 रेस्ट टू पावर 5 इंटू 3 की हाईएस्ट पावर 3 की सेम पावर है, और 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 में हाईएस्ट पावर कौन है? 5. तो 2 की पावर 5 इज 32 एंड 96 इंटू 5 इज 500 माइनस 20, राइट? सो इट बिकम्स 480. So LCM of 96 and 120 would be 480. This is how you do it by prime factorization. ठीक है? All right. I hope this is clear, everyone. Let's get to the next question. This question is very similar to the question that we have done yesterday. लास्ट सेशन में जो हमने किया था उसमें 8 रेस्ट पावर n था, और हमने कहा था कि किसी भी नंबर के अंदर अगर 2 और 5 दोनों नहीं हैं, ये दोनों ही होने चाहिए, अगर कोई भी एक नहीं है तो वो 0 से एंड नहीं हो सकता, कैन नॉट एंड विद डिजिट 0. Similarly, in this question also,
we have 6 raised to power n. If you do the factors of 6, you will write it as 2 into 3 raised to power n, which is 2 की पावर n into 3 की पावर n. तो यहाँ 2 रेज टू पावर तो है, या यानी कि 2 के फैक्टर्स तो हैं, बट 5 के फैक्टर्स नहीं हैं. तो 5 के फैक्टर ना होने की वजह से यू विल से दैट 6 रेज टू पावर n कैन नॉट एंड विद डिजिट 0. ये स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है. एंड फॉर 1 मार्क यू विल गेट द फैक्टराइजेशन and 1 mark as the conclusive statement. Conclusive statement is a statement which with which you conclude the question. जो आपका रीजनिंग है वो conclusive statement से ख़त्म होता है. So 6 raised to power n cannot end with digit 0 because इससे better आपका लिखना होगा यहाँ because the prime factorization of 6 raised to power n does not contain 5 as its factor. अगर कोई भी एक फैक्टर नहीं है 2 या 5 में से कोई भी एक, तो वो 0 से एंड नहीं हो सकता. एंड दिस इज द कंक्लूसिव स्टेटमेंट दैट यू आर गोइंग टू राइट इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन. ठीक है, 1 मार्क का आपका ये फैक्टराइजेशन होगा और 1 मार्क का आपकी ये स्टेटमेंट, कंक्लूसिव स्टेटमेंट. ऑलराइट, ओके, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 3 ऑफ टुडेज सेशन, which is prove that 2 plus square root of 3 is an irrational number given that root 3 is an irrational number. ठीक है, सो यहाँ ऑलरेडी ये गिवन है आपको that root 3 is an irrational number which keeps your question in 2 mark category. अगर ये 3 मार्क में आएगा तो यहाँ ये मेंशन नहीं होगा. मोस्ट प्रोबेबली इट वॉन्ट बी मैंशन कि रूट 3 है या रूट 2 है या रूट 5 है वो इरेशनल है. वो आपको अलग से प्रूव करना होगा इफ़ इट कम्स इन टू 3 मार्क्स, इन 3 मार्क्स कैटेगरी. ओके, 2 मार्क में आपको ये मेंशन होगा मोस्टली. अगर नहीं भी मेंशन है देन यू विल टेक दिस इनटू कंसिडरेशन दैट एज वी नो दैट रूट 3 इज एन इरेशनल. उसके बाद ये प्रूव करेंगे. देखते हैं कैसे करते हैं इसको. 2 plus root 3, right? So let 2 plus root 3 be a rational number. ये जो प्रोसेस हम यूज़ करते हैं इस प्रोसेस को कन्वर्स थ्योरी बोला जाता है, जहाँ आप कॉन्ट्राडिक्शन अज्यूम करते हैं. जो आपको प्रूव करना है आप उस चीज़ के रिवर्स या कन्वर्स उसको अज्यूम करते हैं और आप अपनी ही एजम्पशन को गलत प्रूव कर देते हैं. दैट मेक्स इट कॉन्ट्राडिक्टरी, राइट? एंड वंस इट इज़ प्रूव्ड कॉन्ट्राडिक्टरी, आप बोलेंगे कि हमने तो गलत अज्यूम किया था, वी अज्यूम्ड इट रॉन्ग. दैट इज़ वाई दिस नंबर इज़ द रिवर्स ऑफ समथिंग दैट वी अज्यूम्ड. तो हमें यहाँ ये प्रूव करना है कि 2 प्लस रूट 3 एक इरेशनल नंबर है और हमने उसका कॉन्ट्राडिक्टरी या उसका कन्वर्स मान लिया. और उसका कन्वर्स क्या है? कोई नंबर इरेशनल नहीं होता तो वो रैशनल होता है. तो हमने 2 प्लस रूट 3 को रैशनल मान लिया. अब इफ दिस नंबर इज रैशनल नंबर देन दिस साइन इज ऑफ implies that, okay, then 2 plus root 3 can be written in the form of p by q, where ये स्टेटमेंट लिखना मैंडेटरी है आपके लिए, where p and q are co-primes and q is not equals to 0. ये स्टेटमेंट लिखना मैंडेटरी है. मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इफ़ यू डू नॉट राइट दिस स्टेटमेंट यू लूज मार्क्स. ठीक है, नाउ रूट 3 को यहीं रहने देते हैं. 2 को अगर आप राइट साइड में भेजेंगे इट विल बिकम p बाई क्यू माइनस 2. एलसीएम लेंगे आप, p माइनस 2q अपॉन q. अब आप एक बात समझेंगे,
कि P और Q दोनों कैसे नंबर हैं? कोप्राइम नंबर है। कोप्राइम नंबर्स हैं यानी कि इंटीजर्स हैं, राइट। अगर P और Q दोनों ही इंटीजर्स हैं, बोथ बिलोंग्स टू सेट ऑफ Z, देन इसका मतलब ये है कि P माइनस 2Q भी एक इंटीजर होगा। किन्हीं भी दो इंटीजर का सम या डिफरेंस एक इंटीजर ही होता है, और Q इंटीजर है ही, ये भी इंटीजर है। इंटीजर अपॉन इंटीजर विल गिव यू अ रैशनल नंबर। इसका मतलब P माइनस 2Q अपॉन Q इज अ रैशनल नंबर। बट इट इज गिवन दैट √3 कैसा नंबर है? √3 आपको गिवन है दैट इज इट इज एन इरेशनल नंबर, राइट। तो यहाँ आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे। वो स्टेटमेंट क्या होगी? स्टेटमेंट होगी कि एनी रैशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर। ओके, ऑलराइट। I cannot add this slide here, so I'll have to remove something which I'm writing here. Let us remove this one. ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं आया तो यू कैन रिव्यू इट बैक, फिर से देख सकते हैं आप स्टेटमेंट लिखेंगे, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एन इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू अ रैशनल नंबर which implies our assumption was wrong या contradictory. It implies 2 plus square root 3 is an irrational number. This is the conclusive statement that you're going to write here. Okay. All right, let's move on to the next question. Next question that we have here is explain why 7 into 11 into 13 plus 13 a composite number. All right. ओके, तो आप ऐसे कंपोजिट नंबर, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था, कंपोजिट नंबर्स आर द नंबर्स जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर हों। कंपोजिट नंबर्स आर द नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, जिनके दो से फैक्टर्स ज़्यादा हों। तो बेसिकली जो भी नंबर आपको गिवन होगा उस नंबर के आपको दो से ज़्यादा फैक्टर प्रूव करने हैं। अगर ऐसा आपने कर दिया देन इट इज़ प्रूव्ड टू बी अ कंपोजिट नंबर, राइट। तो वो करके देखते हैं। नाउ इफ यू थिंक अबाउट दिस नंबर, देर आर 2 terms, right? So one first term is 7, 11, 13 and the second term is 13. If I asked you what could be taken common out of these 2 terms, you'll say 13. So अगर आप 13 कॉमन लेते हैं इनमें से, आपकी फर्स्ट टर्म में 13 अगर बाहर लिया आपने कॉमन, तो बचा कौन? वी आर लेफ्ट विद 7 इंटू 11 प्लस, अब आप 13 में से अगर 13 बाहर लेंगे कॉमन, तो यहाँ 0 नहीं बचेगा। कॉमन मिस्टेक है, बता देता हूँ। अगर आपके पास सिर्फ 13 लिखा हुआ है तो एक्चुअली में इट इज़ रिटन एज 13 इंटू 1। नाउ इफ इन 13 इंटू 1 में से इफ यू आर टेकिंग 13 कॉमन, यू विल बी लेफ्ट विद 1। सो यहाँ 1 आएगा। नाउ you can write it as 13 into 77 plus 1, which implies 13 into 78, which implies 13 into, अच्छा 78 into, आपके पास दोनों ऑप्शन है, या तो आप ये कर सकते हैं, यहाँ you can write it as 13 into 78 into 1, जिसका मतलब ये हुआ कि इसके दो से ज़्यादा फैक्टर हुए, 3 फैक्टर्स आ गए, राइट। सो सिंस दिस नंबर हैज़ more, अच्छा ये this is the conclusive statement I was talking about. Since this number has more than 2 factors, therefore this is a composite number. आप एनसीईआरटी में देखेंगे उसमें इसके साथ साथ एक और टर्म दी हुई है, एक और नंबर सेट ऑफ टर्म्स दी हुआ है,
उसको अलग से प्रूव करना है कॉम्पोजिट, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देर आर टू थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ। पहला प्रोसेस ये है जो हमने इसमें किया है, सिमिलर प्रोसेस आप सेकंड वाले सीक्वेंस उसमें टर्म्स में, सेट ऑफ टर्म्स में करेंगे, और उसमें भी यही आएगा, कुछ कॉमन लेंगे, कुछ बचेगा, इनटू वन कर देंगे लास्ट में, एंड you'll राइट द स्टेटमेंट, द सेम स्टेटमेंट, सिंस द नंबर हैज़ मोर देन टू फैक्टर्स, सिंस देयरफॉर द नंबर इज अ कॉम्पोजिट नंबर। अच्छा, मैंने आपसे यहाँ कहा कि आप इसके बजाय कुछ और भी कर सकते हैं, वो क्या है? वो ये है कि आप 13 इसको यू कैन ऑल्सो राइट 13 इंटू 2 इंटू 39। इससे भी आप ये बोल सकते हैं कि सिंस दिस नंबर हैज़ मोर देन टू फैक्टर देयरफॉर दिस इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो आप ये दोनों ही चीज़ में से कुछ भी कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। बिकॉज व्हेन वी हैड टू प्रूव अ प्राइम नंबर, तब मैंने आपको बताया था कि प्राइम नंबर के देर आर ओनली टू फैक्टर्स, वन इज द नंबर इटसेल्फ एंड द अदर वन इज वन। तो वन इज ऑलवेज कंसिडर्ड अ फैक्टर ऑफ एनी एवरी नंबर। जब भी अभी आपको एक और क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें मैं आपको ये फिर से बताऊंगा कि वन क्यों फैक्टर कंसिडर करते हैं और उसका क्या फ़ायदा है, ठीक है। ऑलराइट, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। लेट्स गेट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज शो दैट द नंबर्स आर नॉट को प्राइम। उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए नंबर्स को प्राइम कब होते हैं। को प्राइम नंबर्स आर द नंबर्स जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन हो। अच्छा, को प्राइम नंबर्स इज आपके पास मिनिमम दो नंबर होने चाहिए जिनको आप को प्राइम, सेट ऑफ को प्राइम नंबर्स प्रूव कर सकें। सो मिनिमम टू नंबर्स हैव टू बी देयर, मिनिमम टू नंबर्स हैव टू बी देयर टू प्रूव, हैव टू बी देयर, ठीक है। ये मैंने आपको फॉर योर इन्फॉर्मेशन इस लाइक FYI, तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए है। बहुत बार बच्चों को लगता है कि एक नंबर को प्राइम हो सकता है या एक नंबर रिलेटिवली प्राइम हो सकता है, तो इट्स अ मिसकंसेप्शन, ठीक है। तो मिनिमम दो नंबर होने चाहिए जिन्हें आपको रिलेटिवली प्राइम प्रूव करना है, या ट्विन प्राइम प्रूव करना है, या को प्राइम प्रूव करना है, वो सब चीज़ें हैं। नाउ देर आर टू नंबर्स, वन इज़ 143 एंड द अदर वन इज़ 187। सो व्हाट विल डू इज वी विल मेक द फैक्टर्स ऑफ दीज नंबर्स। अब 143 के फैक्टर्स आपको ईजिली, अगर आपको ध्यान है तो गुड है, नहीं ध्यान है तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नहीं ध्यान तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आपको। सो यू शुड रिमेंबर दैट 143 इज 11 इंटू 13। Similarly, 187 is 11 into 17. Now, if you want to find, like, if you have to find the HCF of these two numbers, HCF of 143 and 187, the HCF is highest common factor, which is 11. So, 11 is not equal to 1. Therefore, you will say the numbers 143 and 187 are नॉट को प्राइम। ये को प्राइम होते अगर इनका HCF 1 आता। और नॉट को प्राइम्स लिख दो या नॉट को प्राइम नंबर्स लिख दो, एक ही बात है। मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, इसमें ऐसा ही एक नंबर है 1001। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्जाम में ऐसा ध्यान नहीं आता है कि ये किसके टेबल में जाता है। सो यू शुड रिमेंबर दैट दिस इज 7 इंटू 11 इंटू 13। चेक कर लीजिएगा आप, 7 पे भी जाता है ये, 11 9911, यस। सो दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दीज थ्री प्राइम नंबर्स 7 11, या याद करके रखेंगे 1001 इज 7 इंटू 11 इंटू 13। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर। को प्राइम प्रूव करना है आपको, सो यू विल फाइंड दी HCF। अगर HCF 1 आ गया तो you will say that the numbers are co-prime, otherwise they are not. Okay, all right, let's move to the next question. Using fundamental theorem of arithmetic, we need to find the HCF of this and this. So fundamental theorem of arithmetic ये क्या चीज़ है भाई? What is this? FTF, fundamental theorem of arithmetic क्या बोलता है? ये थ्योरम बोलती है, कहती है कि किसी भी नंबर को, any number can be represented in the form of the product of its primes.
ओके, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो किसी भी नंबर को, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट 26, वी नीड टू मेक द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26। सो प्राइम फैक्टर्स क्या हैं? 2 है, 13 है। तो इफ यू वांट टू राइट नंबर 26, you can write number 26 as the product of its prime factors। तो prime factors कौन है? 2 and 13, उनका प्रोडक्ट क्या है? 2 into 13। if you make the product you will get 26। so that's what FTS is, right? so ये आपको ध्यान रखना है। similarly if we are talking about 51, आपको टेबल पता होनी चाहिए, या फिर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपको पता लगेगा दैट 51 इज़ 3 into 17। 17 की टेबल आप अगर आपको याद है, कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो याद रह जाते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं भी याद है तो आपको ध्यान रखना होता है कि यार हाँ ठीक है, और ट्राई कीजिए कि टेबल्स आपको याद ही हो। नेक्स्ट वन इज 9। सो 9 यू कैन राइट एज 3 into 3। नाउ you need to find the HCF of these three numbers, right? 26, 51 and 9। इनमें ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों ही प्राइम फैक्टराइजेशन में आता हो। 3 इसमें और इसमें तो है, बट इसमें नहीं है। 13 इसमें है और किसी में भी नहीं है। 2 इसमें है, किसी में नहीं है। 17 इसमें है, बाकी दोनों में नहीं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हुए आपको एक ऐसा नंबर लेना है जो सभी टर्म्स में हो। दैट इज वाई वी से इट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन ऑफ ऑल। ओके, सो बट अब आप बोलेंगे सर कोई नहीं है तो ज़ीरो है। नहीं, ज़ीरो नहीं है। यू विल से दैट I can write 2 into 13 into 1 into 1 into 1। So the HCF comes out to be 1। अब वो बात बताता हूँ आपको जो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊँगा कि क्यों 1 का क्या इंपॉर्टेंस है। उसका इंपॉर्टेंस HCF निकालते हुए इसलिए है क्योंकि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अगर मैं इन तीनों ही नंबर्स में 1 मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ तो यू वॉन्ट बी एबल टू फाइंड दी HCF ऑफ एनी दीज थ्री नंबर्स, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है। तो किसी भी नंबर में आप 1 तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, किसी भी नंबर में आप 0 ऐड कर सकते हैं, उस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और किसी भी नंबर में आप 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एडिशन वाली प्रॉपर्टी को एडिटिव आइडेंटिटी बोला जाता है, और मल्टीप्लिकेशन इनटू 1 को बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। दैट यू माइट हैव डन इन योर लोअर क्लासेस, शायद 6th-7th में आता है ये, बट ये ध्यान नहीं रहता है। बट ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यू विल ऑल्सो गेट टू नो मोर अबाउट दीज इन योर +2 क्लास व्हेन विल डील विद मैट्रिसेस। ओके, तो मैट्रिसेस करते हुए भी ये सब चीज़ें आती हैं, बट अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अगर किन्हीं भी नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 इज़ देयर HCF। ऑलराइट, सो 1 वुड बी योर आंसर। All right, let's get to the next question, which is question number 7. The question says HCF and LCM of two numbers are this and this. If one number is 18, find the other. So HCF and LCM of two numbers. HCF and LCM of two numbers are 9. तो मैंने आपको कल एक रिलेशन बोला था, HCF and LCM of A and B is equals to A into B. ओके, HCF आपको दिया हुआ है 9। ये रिलेशन मैंने आपको बताया था, और मैंने ये भी कहा था दैट यू शुड रिमेंबर दिस रिलेशन ऑफ HCF एंड LCM इनटू टू नंबर्स। तो HCF आपको क्या गिवन है? 9। LCM आपको गिवन है 90। ठीक है, नाउ इनमें से एक नंबर आपको गिवन है 18। सो A हो या B हो, मैटर नहीं करता, प्रोडक्ट है। तो चाहे आप A को 18 लिखिए, चाहे B को 18 लिखिए, यू कैन राइट इट एज 18 into B। सो अब फिर से वही बात मैंने आपसे कहा कि अगर आपको टेबल याद है तो इट्स गुड, वेल इनफ। तो 18 5s are 90 डायरेक्टली। अगर आपको 18 का टेबल पता होता तो यू कुड कट 18 and 5 डायरेक्टली। अगर आपको नहीं कट याद तो आप 9 को 18 से कट करेंगे 2 पे, 2 को 90 से कट करेंगे 45 पे।
So 9 5s are comes out to be 45. So the other number is 45. Easy, as simple as that, right? So is relation based, the multiple times questions have come in your MCQ section also. 2 मार्क्स में अक्सर थोड़ा सा प्लस क्वेश्चन लेवल आता है, और इस बार मुझे इससे थोड़ा सा प्लस उम्मीद भी है. अगर एच सी एफ एल सी एम बेस्ड क्वेश्चन आता है तो इट वॉन्ट बी बेस्ड ऑन नंबर्स डायरेक्टली. देर आर मल्टीपल क्वेश्चन इन आर डी शर्मा ऑल्सो विच कैन कन्फ्यूज यू, राइट. सो वो क्वेश्चन भी हम सब करेंगे इस सीरीज़ में. अगर हम सही चले, सब कुछ सही चलता रहा, then we will definitely discuss good questions for R D Sharma also. But I can assure you. So now the last question, the last part of the session is this. C part is 1 by root 2. अब हमें 1 by root 2 को प्रूव करना है कि ये इरेशनल है. ओके, सो 1 by 2 को इरेशनल प्रूव करना है. Okay, you will assume that to be a rational number. अगर ये रैशनल नंबर है, सो वी कैन कीप इट इक्वल टू पी बाई क्यू. स्टेटमेंट क्या लिखेंगे जो हमने बाकी के 2 पार्ट्स में लिखी है, वो क्या है स्टेटमेंट? वेयर पी एंड क्यू आर रैशनल आर को प्राइम्स लिख सकते हैं या को प्राइम नंबर्स. वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, क्या करेंगे आप? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यू अपॉन पी को आप रूट 2 लिख सकते हैं. फिर आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि रूट 2 तो ये रैशनल नंबर है, हम ऐसा मान सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ 2 मार्क का क्वेश्चन है, हमें ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है. और क्यू एक इंटीजर है, पी एक इंटीजर है, इंटीजर अपॉन इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है. सो दिस इज़ अ रैशनल नंबर. और उसके बाद आप लिखेंगे एक कंक्लूसिव स्टेटमेंट. वो स्टेटमेंट क्या है? एनी रैशनल नंबर एंड irrational number cannot be equal to a rational number, therefore our assumption was wrong. क्या था हमारा assumption? हमारा assumption ये था कि रूट 2 एक रैशनल नंबर है. Hence 1 by root 2 is not an irrational number, it's an irrational number. ये एक रैशनल नहीं, irrational number है. That would be the end of the question. All right, so I hope this is clear. हर साल एवरी ईयर कंसिस्टेंटली चैप्टर 1 से ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन आता ही आता है. ही कैन ट्विस्ट द क्वेश्चन इन एनी वे पॉसिबल. एक और बात बता देता हूँ मैं आपको, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स में आपको ये भी प्रूव करने मिलेगा कि प्रूव दैट स्क्वायर रूट पी प्लस स्क्वायर रूट क्यू को प्रूव कीजिए कि ये इरेशनल नंबर है, वेयर पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स. ओके, दिस क्वेश्चन इज नॉट इन योर सिलेबस. इसमें वो लगता है डिवीजन, और वो सभी क्वेश्चन जिसमें डिवीजन एल्गोरिदम लगता है वो क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है. सो डोंट गो बाय दोज क्वेश्चंस. आप कहेंगे ये एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस हैं, आप कहेंगे तो हम डिस्कस करेंगे. Otherwise I don't feel any need of discussing these questions for now, because अभी वक्त बहुत कम है आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में. और do not waste your time in the questions which are least likely to come in your exam. ये नहीं आएंगे क्वेश्चन. आई एम pretty much sure कि ये सिलेबस में नहीं है और आपके एग्ज़ाम में नहीं आ सकते. अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं there would be a blunder from the CBSE point of view, और इसका ऑब्जेक्शन उठेगा ही उठेगा.
and eventually you'll get the bonus mark for such questions. But still, if you'll say I'll discuss such questions also जो आपको समझने हैं, just for the sake of your further studies. If you want to pursue non-medical and go on with these questions, we'll discuss it someday. All right. Okay, so today's session was this, and this was the 2 mark question, and tomorrow we are going to discuss 3 mark questions of priority 1. All right, till then, goodbye. Thank you for joining me. Happy learning. Signing off, Vipul Goyal. Bye bye.